Hello class, in last lecture we are taken here zero product property, okay, and one theorem based on this, okay. So today we will take here next point. Here there is one theorem, you just try yourself that only divisor of 1 are 1 and minus 1. I think we were taken this example, divisibility of prime, then division in cases also we are taken here. And now today we will start with our next point here, quotient and remainder theorem. What is quotient remainder theorem? State that given any integers n and positive integer d, there exists unique integer q and r such that n is equals to dq plus r and 0 is less than r is less than d. देखो how they show this theorem, that first what they gives us, you are just note down. Quotient remainder theorem. What quotient remainder theorem states that for any given any integer n and positive integer d, there exists unique integer q and r such that n is equals to dq plus r and 0 less than equals to r less than equals to d. Okay, we just try to prove this theorem यहाँ पे. Okay, proof is not necessary, only theorem statement is given that यहाँ पे क्या है, n क्या है, n divides r. Okay, the integer quotient obtained when n is divisible by d and n is the mod n mod d, मतलब क्या रहता है, the non negative remainder obtained when n divided by the d. Okay, symbolically हम इसे कैसे लिखते हैं, n divides d is equals to q and n. Here mod d is equals to n is equals to dq plus r. Okay, now we will take one example. Suppose m is an integer if m modulus 11 is equals to 6, then what is 4m modulus 11. ओके, उन्होंने हमें ये पूछा है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके इसे ट्राई करते हैं सॉल्व करना.
as given m is modulus of 11 is equals to 6. Okay, this gives m is divided by 6. Okay, so there exists an integer q such that m is equal to 11q प्लस 6. आपका क्या हो रहा है, जब भी हम ऐसे लिखते हैं मतलब क्या रहता है कि आपका जो m है मॉड्यूलस मतलब डिवाइडेड, इधर m इज डिवाइडेड बाय 11 एंड आपका जो 6 रहता है 6 इज द रिमाइंडर. ओके, 6 क्या है, रिमाइंडर है. तो यहाँ पे आपका कैसे आएगा कि m इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे मैं 4m इज इक्वल्स टू पूछा है तो क्या आ जाएगा 44q प्लस 24. मैं 24 को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखती हूँ कि 24 आई कैन राइट एज अ 22 प्लस 2. सो दिस इज नथिंग बट 11 इंटू 4q प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा. ओके, सो दिस सपोज 4q इज इक्वल्स टू सम इंटीजर 4q प्लस 2 इज इक्वल्स टू n. दिस इज नथिंग बट एन इंटीजर, राइट ना. तो मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ 11 इंटू n प्लस 2. 4m क्या है आपका 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आप कैसे लिख सकते हो इसे 4m मॉड्यूलो 11 जो प्लस में लास्ट रहता है. दिस इज नथिंग बट योर रिमाइंडर. ओके, दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर. ओके, तो ऐसे आपको उसे सॉल्व करना है. एग्जांपल देखो, ये है मॉड्यूलस मतलब डिवाइडेड बाय m क्या होता है, डिवाइड करने के बाद 11 से 6 क्या रह जाता है, आपका रिमाइंडर रह जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैरिटी ऑफ एन इंटीजर. नेक्स्ट पॉइंट है पैरिटी ऑफ एन इंटीजर. इसका थ्योरम हमें दिया गया है. थ्योरम इज any two consecutive integer have opposite parity. Any two consecutive here integers have the opposite parity. Okay, so what is mean by parity? पैरिटी का हम मीनिंग लिख लेते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर बीइंग इवन और ऑड. आपका कोई भी ये है ना कि अगर सपोज ये प्रॉपर्टी क्या है कि इवन फंक्शन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती है, ऑड फंक्शन रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या आती है. दिस प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट द पैरिटी ऑफ दिस इंटीजर्स. तो उन्होंने कहा है कि दो जो कॉन्सिक्यूटिव अपोजिट नंबर्स रहते हैं उनको क्या रहती है, अपोजिट पैरिटी रहती है. कैसे शो करोगे आप ये कि सपोज m and m+1 are two
कॉन्सिक्यूटिव नंबर ये दोनों क्या है आपकी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ पे सपोज m अगर आपका इवन नंबर है, m क्या है आपका इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा m अगर इवन है तो आई कैन राइट दिस m as 2k, right? m we can write as a 2k where k is an integer, right? k is an integer. If m is equals to 2k, then m plus 1 is equals to 2k plus 1, okay, which is odd. हमें पता है कि ऑड नंबर क्या रहता है आपका, ऑड नंबर वी कैन राइट एज द 2k plus 1. ये आप चाहे तो लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड, ओके. सो क्या हो गया मेरा, इफ m इज इवन दिस गिव्स m plus 1 is odd, so it has the opposite parity. सेकंड में केस लेती हूँ, केस सेकंड, ये आपका फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं कि इफ़ m इज़ ऑड, m अगर ऑड रहेगा सो m इज़ इक्वल्स टू 2k plus 1 बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड, राइट. तो m plus 1 क्या आ जाएगा आपका 2k plus 1 which is equals to 2k plus 2. this is nothing but k plus 1, okay. this k को मैं एज अ k डैश में करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा k डैश, m plus 1 क्या हो जाएगा, इट इज़ इवन बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर. तो देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि ये कर सकते हो कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो आप इसे इस तरीके से प्रूव कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो कि कौन से भी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर आप यहाँ पे लास्ट में लिखो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 consecutive number has opposite, यहाँ पे मैं इस साइड में लिखती हूँ has opposite parity, has what opposite parity. आपके दो consecutive नंबर रहेंगे has what opposite parity. देखो कैसे प्रूव किया है, एक बार देख लो कि एक बार हमने इवन लिया तो उसका कॉन्सिक्यूटिव ऑड आ रहा है, ऑड लिया तो उसका क्या आ रहा है अपोजिट नंबर, ये आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर इवन आ रहा है, ओके. नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन. नेक्स्ट ये है आपका ये फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन. Now what is this floor and ceiling function? Definition of the floor function लेते हैं फर्स्ट. फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है, फॉर एनी गिवन ईयर any real number x, the floor of x denoted by here this function. मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये देखो इस टाइप से उसे क्या करते हैं
ड्रॉ करते हैं। नीचे से उसे खाली थोड़ा कर्व करो। ओके, इट इज़ नथिंग बट द greatest integer less than and equals to x. That is unique integer n such that n is less than equals to x less than equals to here strictly less than n plus 1. ओके, सिम्बॉलिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। If x is a real number and n is an integer, then here floor of x is n less than equals to x less than equals to n plus 1. ये है आपका x, ये है आपका n plus 1, ये है आपका n. ओके, सो दिस n, ये जो n रहता है, ये n रहता है आपका फ्लोर ऑफ x। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। ओके, तो जब भी हम कोई भी आपका एक इंटीजर कंसिडर करते हैं ना, उसका कॉन्सिक्यूटिव या फिर इसका क्या होना चाहिए, n ऐसा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल्स टू, एक से एकदम से नियरेस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा जो क्या होना चाहिए, एक से लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। इसमें भी यहाँ पे n-1 हो, n-2, n-3, पर उनमें से हम क्या कंसिडर करेंगे कि n इंटीजर कंसिडर करेंगे, जो क्या हो जाएगा आपका फ्लोर ऑफ x। नेक्स्ट डेफिनेशन है सीलिंग ऑफ x। डेफिनेशन अभी सीलिंग फंक्शन क्या रहेगा, हम डायरेक्टली इसको सिम्बॉलिकली ही रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन सेम टाइप से, खाली लो आपका क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर रहेगा। इफ x is a real number, x is a real number and n is an integer, n is an integer, then ये देखो कैसे फ्लोर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोर ऑफ x इज इक्वल्स टू n such that n-1 लेस दैन n लेस दैन इक्वल्स टू n। यहाँ पे मैं ड्रॉ भी करती हूँ, ये x रहेगा, ये आपका n-1 और ये n, तो ये n को हम क्या कहेंगे, सेलिंग ऑफ दिस x, और उसे रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म से। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ये है आपका फ्लोर, ये है आपका सीलिंग। ओके, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ।
कि अगर मैं ऐसे 9.14 लिखूँगी, सो ये ऐसे, तो ये क्या है, फ्लोर लेना है। फ्लोर मतलब मैं क्या करूँगी, इसका छोटा वाला वो क्या आएगा आपका n से, ये देखो 9.5 है ना, तो 9 कंसिडर करो। पर जब मैं यहाँ पे 9.14 का क्या करूँगी, ये सेलिंग ले लूँगी। सेलिंग के लेना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे n आपका 9 से बड़ा होना चाहिए, उसके नेक्स्ट नंबर क्या है 10, तो वो क्या आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे देखो, अगर मैं फ्लोर ऑफ 9.14 ले रही हूँ, फ्लोर ऑफ क्या है 9.14 माइनस है ना, तो यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, फ्लोर आपका 9.14 का ये रहेगा -10। और जब मैं सेलिंग ले लूँगी 9.14 का, वो क्या रहेगा आपका -9। ओके, अब अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करती हूँ, रियल लाइन से दिखाती हूँ। यहाँ पे सपोज मैं ये अभी पहले वाले पॉइंट नहीं कंसिडर करती, ये आपका 0 है, ये आपका +9 रहेगा, ये -9 है। इससे पहला का पॉइंट 8 है, ये आपका 10 है, यहाँ पे आपका -8 है, ये आपका -10 है। तो यहाँ पे देखो कि जब मैं फ्लोर ले लूँगी 9.14, सपोज़ यहाँ पे आपका पॉइंट है आपका 9.14, यहाँ पे आपका पॉइंट है -9.14। ओके, तो इसका फ्लोर क्या रहेगा, इससे पहले वाला ये है उसका फ्लोर। ओके, ये है क्या है उसका फ्लोर ऑफ 9.14, सॉरी ये ऊपर रहेगा। और ये क्या रहेगा, दिस पॉइंट इज़ व्हाट सेलिंग ऑफ 9.14। यहाँ पे वो अपोजिट हो जाएगा, ये क्या रहेगा, ये रहेगा उसका ये रहेगा उसका फ्लोर, ये सेलिंग, सॉरी -9.14 का सेलिंग क्या रहेगा, ये बड़ा नंबर देखना है हमें। -9 क्या है, बड़ा है -10 से, तो ये आपका जो है 10 क्या होगा, आपका फ्लोर हो जाएगा। 9.14 का फ्लोर क्या हो जाएगा 10। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। कि कंसेप्ट समझ में आ गई। There is one theorem that for real number x and integer m, for all real number x and all integer m, x plus m is equals to x plus m। ओके, कौन सा भी हम इंटीजर कैसे लिख सकते हैं, ये ओके, इस टाइप में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ तक हम, इसके बाद का जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वाला द फ्लोर ऑफ n/2 फॉर एनी इंटीजर n, उसको हमें क्या करना है, इस तरीके से आएगा दैट n/2 is equals to n/2 if n is even और n-1/2 if n is odd। उसको कैसे प्रूव करना है, वो प्रूफ सहित हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एटलीस्ट आप एक बार उससे देख लो। ओके, थैंक यू।